this distinguished guest lectures series today, we have with us Mr. Apoorv Agarwal, Head Service Management Practice at Tata Consultancy Service. Give him a huge round of applause. Along with him, we have Mr. Rajat Sikka, Head Talent Acquisition TCS. Please, can we have a huge round of applause? I think this session today was conceived about 10-15 days back when I was discussing with the team of your CRC, and they wanted a session. So apparently during the time when Aditi was discussing with me, I had Apoorv sitting next to me, so he gladly consented. My only request over here would be that over the next an hour or so, when Apoorv is going to talk about data analytics and industry and so on and so forth, make the session interactive. MBA PGDM kids are more smarter. Sorry for saying that, more smarter than engineering graduates. So make the session interactive so that at the end of the day, when we are going back home, we enjoy that. Yes, we came to a great college, great set of students, and so let's make the session interactive. And I think Apoorv would love to take that. So over to you, Apoorv. Thank you. Say, when I started my career, IT industry in India was evolving, and in my college I remember there was only one lab with only 12 computers, and we used to go in the lab, after removing our shoes. It's kind of a place where you can't go inside with your shoes, because of dust and all. No, they were 8088. So we used to boot them with a floppy disk. No hard disk. So 286, 386 came later on. So I started my career on a 8088 processors. So from there, and my first assignment was on a mainframe. I don't know if you guys have heard about mainframes. I started my career on a mainframe, and with COBOL 400. My first programming language was COBOL and Fortran. So I started from those days. So for me, again, it was all fun. I liked it. You can sit down. So the good part in this industry, and which I like the most, is this industry never stops. In my days, things used to change, I would say, every 3-4 years. No. So from COBOL to C, C++, then Java, .NET. So there was a growth. But now, last 5 years, things are changing every 6 months. That's become even more demanding and more challenging. So touch wood, I am now out of the programming league. I'm doing more managerial work. But for you guys, that will become even more demanding and more challenging. When I used to go to college, we used to ask कि उसको कितना programming में आती है, कितना basic भी आता तो चलेगा. But now it's given. I'm talking about the BTech students. But now it's given कि you would know Python. सबको Python आता होगा. Because that's a demand, and we expect everyone to know Python. Within 1 year may not be Python, something else, because Python may have its own shelf life. So I think that's I will say most challenging, that this industry is very demanding. Technology is changing every other day, and with Gen AI, things are even actually becoming even more challenging for all of us. But that's the beauty and the fun of this industry. This session is all about you. So you guys perhaps are going to give me another 45 minutes, 1 hour. I want you to make maximum of this 1 hour. I am here to share my experience. When we were discussing with the sir, I told them, we are not a lecturer or faculties. So don't expect any session from me. It is all about sharing my experience. What all we do in the industry, what do we see my customers are demanding from us, and then what we expect from you. Because after a few years, you guys will be standing here and delivering a session like this. So you can see your future in me as I see my past in you. Right? So if you are going to get into industry like my industry, what do you expect from the industry, from the customer? I'm going to discuss that. Keep this session interactive. Make sure that it doesn't become a monologue. Ask me questions, because if you don't ask me question, I will start asking questions. Okay? And there is a mic as well. So whoever wants to ask a question, feel free to raise a hand. We'll get a mic and then
Now we'll start interaction. Let's make it more like an interaction rather than a session. So I just want to make sure that you guys are actually listening to me, right? You know the difference between hearing and listening. Let's see that. So I want each one of you to raise your hand. Each one of you should raise your hand. Now touch your head. Touch your nose. Touch your cheek. You are not listening. Okay. So, for next 45 minutes, make sure that you touch your cheek. So today, as per the agenda, I am from TCS. We play with the technology. So I want to give you a glimpse of what are the technologies that we are working with and what we see the future of these technologies. So technologies are evolving and no one is immune from technology. So if you believe that you are a management student and technology will not impact you or you will be immune from the technology changes, it might be a misconception. Nowadays, there was a time when we used to say technology is a business enabler. But now technology is actually a business. If you look at the companies like Uber or Ola, what kind of a company they are, like, or what kind of an industry they are working with. So Ola, Uber, Swiggy, will you call Ola a company in a automobile industry or a travel industry? Ola is a typical technology company, but they have changed the way we used to travel. So technology is now defining the way industry operates. So for you going to be a manager very soon, it's equally important for you to understand how technology is shaping up the industry, how technology is changing the business. So this session will be more about understanding the technology and its business impact. And then we'll see the business analyst part as well. What are the expectations? I understand there are students who are doing their degree in business analyst part. So we'll touch upon that aspect as well. So what do you see here? Chakki, grinder. Why do we use चक्की for grinder? किस लिए यूज करते हैं? आटा पीसने के लिए. आटा कौन पीसता है यार? ठीक. So you would have seen this grinder, right? सब में देखा है वो. ठीक है. कुछ लोग आटा भी पीसते हैं. कौन बोल रहा है हम तो आटा पीसते हैं? ठीक है. तो there are few guys who actually use this for grinding wheat. Okay. Now what is this? ये क्या है? It's a, we call it Persian wheel. And again, what is the purpose of a typical Persian wheel? So it's also a kind of a chakki, but rather than using a manual energy and manual labor, we are using the natural forces. So we can convert water energy or wind energy to run the wheel. तो ये भी एक चक्की है, ये भी आटा पीसेगी. Now what is this? Electric grinder. तो ये भी एक चक्की है, ये भी गेहूं पीसेगी. अभी क्या डिफरेंस आ गया? How this is different from the previous one? We are now started using technology. So rather than relying on the natural forces, we can run this grinder with the help of electricity or oil. We can use some PLCs to automate its operations. And eventually, ये क्या है? ये भी एक चक्की है, but now it's a floor mill.
बड़े वाली चक्की। तो अभी in these last 4 slides, what is that you have seen? Technology. How technology has changed in last 250 years. And what is the outcome? पहले क्या थी, आपके पास एक ग्राइंडर था, आप हर रोज जितना आटा गेहूं पीसना है उतना यू कैन यूज इट, अपना डेली का डेली आउटकम, एक घर के लिए, 2 घर के लिए, दैट्स ऑल। फिर थोड़ा सा आपने यू स्टार्टेड यूजिंग द नेचुरल सोर्सेज, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, स्केल बढ़ गया, तो आप एक शायद एक गांव के लिए, एक थोड़े से एरिया के लिए यू कैन यूज द आउटकम प्रोडक्शन। बट देन यू हैव इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। इन आवर सिटी वी स्टिल यूज दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, कहीं गली के कोने पे बैठा होगा जो चक्की चला रहा होगा ऐसे। सो फॉर द एंटायर कॉलोनी दैट गाय इज गुड एनफ। तो नाउ द प्रोडक्शन हैव इंक्रीज्ड, efforts have reduced, manual efforts have reduced, but the production and outcome have increased. And floor mill is all about the mass scale production. तो अभी आप पूरे शहर के लिए आटा प्रोड्यूस कर सकते हैं with one floor mill, and then this is more standardized. पहले का क्या है, वो जो मन करेगा दुकानदार का वही बना देगा, राइट? बट नाउ दिस इज अ फ्लोर मिल, तो आप सारी चीजें ऑटोमेट भी कर सकते हैं। And then you can also have a variety. So now within floor mill you can have a different kind of outcome. So this is all the technology evolution. So this is kind of how industry has evolved in last 250 years. And where are we? आज इंडिया कहाँ पर है? If we go in this chart, हम लोग कहाँ पर हैं इस टेक्नोलॉजी ग्रोथ में? We are somewhere developing. This is where we are. This is today's India. I hope it is a little bit readable from back seats. Can you read it? Okay. So our population is 1.4 billion. 1.36 Aadhaar cards. Look at the number of internet users. 120 crore. Look at the mobile phones. 114 crores. And 60-70% of them will be smartphones. Or maybe more than that. So smartphone means people are using apps and they know how to use technology. It says smartphone users 65 crore. OTT subscribers 50 crores. Again, OTT. We all use OTT, right? What if that OTT platform is? All technology. Right? I mean, they have a unlimited storage. कहीं पे कुछ क्लाउड पे डाल के रखे हैं, खूब सारे मूवी सब डाल के, वहाँ जिसको चाहिए अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जिसको चाहिए वहीं से दिखा देंगे। दैट्स हाउ दे हैव चेंज्ड द एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सो दिस इज टुडेज इंडिया। वी आर एक्चुअली ड्राइविंग दिस टेक्नोलॉजी चेंज। We can actually feel proud. There was a time when we used to say we are using the technology. But now we are actually using the technology to shape the industry. UPI, we are the leader in UPI, right? Almost everyone now use UPI. There is a report that the number of credit cards and the usage of plastic money is actually declining. Even the cash, the transaction over cash is declining because everyone is now comfortable with PhonePe or Paytm. So this is today's India, and this is what you are going to kind of be part of it. So now, when we say now the technology has made all these changes, what are those technologies? थोड़ा वो technology की बात करते हैं, right? So we use a term called Industry 4.0, जो पूरा growth हुआ है. Have you heard this term Industry 4.0? So Industry 4.0 is all about making use of the machine, make it intelligent, and let it work with the human beings. So we use a term called cyber physical systems. So systems which are interconnected, secure, working along with human beings. That's how we define the Industry 4.0, today's era. Now, what are those technologies which are defining Industry 4.0? Any questions so far? ठीक है, then I will start asking. No?
So what I will do, will take one technology at a time, and anyone who wants to talk about it, if whatever you know about that technology, ये सुना था, पढ़ा था, let me share my thoughts around that technology. You raise your hand, feel free to speak. If none of you raise your hand, then I will pick any one of you. Deal है? ठीक है. So it is all post-lunch session. I will make sure that you guys will remain awake. So augmented reality. Augmented reality. You would have heard about virtual reality. So virtual reality versus augmented reality. AR. Anyone wants to talk about augmented reality? What is AR? Anyone knows about AR? किसी को नहीं पता, ऐसे मत बोले यार. I see someone is kind of a doing augmented reality. No idea. Google मैप यूज किया कभी? क्या है? Okay, what is virtual reality? Forget about augmented reality. Virtual reality. कितने लोगों ने पबजी खेला है? सबने खेला होगा ना. वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? व्हाट इज वीआर? सब कुछ वर्चुअल है. वर्चुअली रियल. वर्चुअली रियल. इसने अच्छा किया, वर्चुअल रियलिटी को स्मार्ट कर दे, वर्चुअली रियल. तो इसमें क्या है, जो मार रहा है वो भी वर्चुअल, जो मर रहा है वो भी वर्चुअल, जिस मशीन से मार रहे हैं वो पिस्तौल वो भी वर्चुअल, गोली भी वर्चुअल, शहर भी. सो एवरीथिंग इज वर्चुअल. कुछ भी असली नहीं है उसके अंदर. ऑगमेंटेड रियलिटी इज वी impose virtual world on a real world. That is your augmented reality. एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया गूगल मैप का. आप गूगल मैप पे हो, आपको वर्चुअल दिखता है शहर, बट दैट इज एक्चुअली अ रियल वर्ल्ड. एंड इफ यू हैव सीन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन गूगल मैप्स, यू कैन इवन हैव योर पेट. आप अपने पेट की फोटो डाल दो गूगल मैप के अंदर, सो इट विल शो यू द मैप कि ये आपका रास्ता, आपको ऐसे से जाना है, और आपका जो पेट है वो आपके आगे आगे चलेगा. तो इट इज़ लाइक यू आर ट्रैवलिंग और यू आर वॉकिंग अलॉन्ग विद योर पेट. अपनी डॉगी के साथ आप उस सड़क पे चल रहे हो. सो दैट्स ऑगमेंटेड रियलिटी. आपने रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कंबाइन कर दिया. कहाँ पे इसका यूज देखते हो आप? वेयर, विच इंडस्ट्री? अगर तुम लोग MBA हो ना, एंड रजित सेड मोर स्मार्टर. स्मार्टर भी नहीं, मोर स्मार्टर. कहाँ यूज करोगे ऑगमेंटेड रियलिटी? कौन सी इंडस्ट्री में? रियल एस्टेट. ओके, वेरी गुड. विच वन? ई-कॉमर्स. E-commerce, yes. For retail and CPG, that's where you see the maximum usage. Logistics. Again, you can use it in every other industry. But can you give me some example also? बोला तो तुमने, किसने बोला logistics? Who said logistics? कोई एग्जाम्पल दे. डिलीवरी में कैसे? ठीक है, गुड. फिर अगेन, हाँ, फिर आप लोगों ने लेंस कार्ट, किसी ने अगर चश्मा खरीदा हो तो लेंस कार्ट करते हैं ना, वो आपका चेहरा रहेगा, वो सारे चश्मे दिखा रहेगा उसके ऊपर, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा. मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स नाउ डूइंग दिस. इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे इट वॉज बिकम वेरी कॉमन. आपको ई-कॉमर्स पे कोई भी ड्रेस खरीदनी है, आप वहीं ट्राई कर सकते हो वर्चुअल वर्ल्ड में. दैट्स ऑगमेंटेड रियलिटी. So technology is driving the industry. So far so good. Okay. Next is autonomous robot. Robot है लेकिन autonomous. Autonomous robot. क्या मतलब हो सकता है इसका? Autonomous का मतलब क्या है? Autonomous robot. कोई एक खड़ा होकर जोर से बोलो ना, भीड़ में क्यों बोल रहे हो? MBA हो तुम यार. Excellent. First of all, give him a big hand. Hey, if you want to stand out, that's the way you need to stand out. Raise your hand or stand up and speak. Then only you will get recognition. वरना भीड़ का पार्ट बन जाओगे. Good. Thank you. Thank you. Sit down. So रॉबोट है, मतलब रॉबोट सबको समझ में आता है, राइट? आपने मशीनों किसी काम को
ऑटोमेटेड कर दिया है. इट कुड बी अ मैनुअल वर्क और इट कुड बी सम सिस्टम जॉब. हम लोग IT इंडस्ट्री में भी यूज RPAs, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं. ऑटोनॉमस मीन्स वी आर ऑल्सो बिल्डिंग द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज सो दैट द मशीन कैन वर्क ऑन देयर ओन. मुझे उसको गाइड करने की या इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है. मजा आ रहा है? गेटिंग द मैसेज? So autonomous robots is you are using machines becoming intelligent and deploying into operations. कहाँ यूज कर सकते हैं इसका? थोड़ा अगेन थिंक अबाउट इट. कहाँ? सैटेलाइट. कैसे? जरा अगेन थिंक अबाउट इट. एग्जाम्पल बता के थोड़ा. अभी हम लोग चंद्रयान पे भेजा, सब कुछ उसने खुद ही किया, राइट? नहीं, गुड एग्जाम्पल. थोड़ा जमीन का बताओ, थोड़ा धरती पर. मैन्युफैक्चरिंग, अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल. मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग से अभी इफ यू हैव सीन अ टिपिकल कार मैन्युफैक्चरिंग, हैव यू सीन कोई वीडियो देखे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस तरह के होते हैं? इट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन बाय मशीन अलोंग विद ह्यूमन बीइंग. और आप एंड द इंटेंशन इज लेट्स ट्राई टू ऑटोमेट मोस्ट ऑफ द थिंग, ताकि ह्यूमन बींग्स पे डेवलप जितनी डिपेंडेंसी है वो कम होती जाए. इनफैक्ट जो बड़े बड़े रिटेल्स वेयर हाउसेज हैं, दो वेयर हाउसेज कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, उसको रखना उतारना, वी यूज बिग क्रेन्स. क्रेन होती है जो चीज़ें रखती हैं उतारती हैं. पीपल आर ऑटोमेटिंग एवरीथिंग. किसी को ज़रूरत नहीं है ड्राइवर को वो क्रेन लेके जाके वहाँ पे अपलोड करने की. क्रेन जाएगी, अपने आप अपलोड करेगी, डाउनलोड करेगी. इनफैक्ट वी डिड अ प्रोजेक्ट फॉर वन ऑफ द रिटेल कस्टमर. वी डेवलप व्हाट वी कॉल द स्मार्ट शेल्फ. स्मार्ट शेल्फ, हम जब जाते हैं किसी स्टोर में, शेल्फ में सामान रखा होता है, तो जो शॉपकीपर है उसका काम क्या है? ये हैव टू मेक श्योर कि जैसे चीज़ खत्म होने से पहले ही ऑर्डर कर दो, ताकि सप्लाई चेन बंद ना हो. चीज़ खत्म होने से पहले सप्लाई आ जाए. नाउ दिस स्मार्ट शेल्फ, उसको जरूरत नहीं है कि शॉपकीपर फोल्ड करेगा. दे हैव द सेंसर्स. वो वेट लगा है उस पर, वो उस वेट से उसको पता है कितनी क्वांटिटी रखी है, कितनी ब्रेड है, कितना दूध है, कितनी पेरिशेबल आइटम्स है. आपने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, जैसे ही 70% आइटम्स कंज्यूम हो गई, शेल्फ विल प्लेस द ऑर्डर टू द नियरेस्ट सप्लायर कि जब भी नेक्स्ट सप्लाई आएगी आप मुझे ये आइटम जो है सप्लाई कर देना. दैट्स ऑटोमेशन. तो मशीन इज ड्राइविंग द सप्लाई चेन. थर्ड इज बिग डाटा. बिग डाटा, डाटा है और बिग है. कोई बताओ? अरे सब कुछ इसी को पता है यार, एक ही लड़का बता रहा है, स्मार्ट है. बिग डाटा तो वही है ना, तू स्मार्ट है. वर्चुअल रियलिटी का भी. सो इट्स अ बिग डाटा, राइट? बिग डाटा का मतलब क्या है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डाटा. चलो, हाउ बिग डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डाटा. तो नॉर्मल डाटा में क्या रहता है? अरे कुछ भी आपने रखा, ट्रांजेक्शन्स मॉनिटर हो रही हैं, नॉर्मल मेरा ई-कॉमर्स का पोर्टल है, सब उसके अंदर स्टोर हो रहा है. बिग डाटा इज ऑल अबाउट स्टोरिंग एनी डाटा एनीवेयर एनी टाइम. दैट्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक. इस कमरे में अगर 4 CCTV लगे हैं, तो वो CCTV की फुटेज इज गेटिंग रिकॉर्डेड समवेयर, and you are keeping that data for next 30 days, whatever that duration is. Storing that data, you can assume कितना चाहिए होगा उसके लिए storage. If you are storing the CCTV footage, and if you talk about Delhi government has installed what 20,000 CCTVs. वो 20,000 CCTVs का data is stored somewhere. Think about the kind of data is required. And every other इंडस्ट्री इज गोइंग अबाउट डाटा. हम लोग कितना भी बोलते हैं GDPR, डाटा प्राइवेसी, अरे मेरा डाटा ले लिया, मेरा सिक्योरिटी इश्यू हो गया, मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो गई. वाई डाटा इज बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट? इफ यू रिमेंबर, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग थी, एंड मिस्टर मुकेश अंबानी इन दैट AGM he said in last 20 years Reliance Industries made money through
रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करता है? ऑयल, राइट? ऑयल रिफाइनरीज। कहाँ पे है उनकी रिफाइनरीज? जामनगर। वेरी गुड यार, ये बेंच ज़्यादा एक्टिव है, ये लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, तुम भी थोड़ा हो। So Reliance Industry, they said we made money through oil in last 2 decades. Now how they are going to make money as per Mr. Ambani? Data. He's saying data is the new oil, and that's why you see a lot of money is being pumped into Geo TV, Geo Cinema, Geo Fiber, whatever, because he understands the importance of data. तो इतना important क्यों है डाटा? एंड वी टॉक अबाउट बिग डाटा। इतना डाटा सेव करना, स्टोर करना क्यों चाहिए? किस लिए? वाई डाटा इज सो इम्पोर्टेंट? टू नो आवर कस्टमर। तो बहुत एक छोटा सा आउटकम हो गया, देयर बाइंग बिहेवियर। ओके, चेंजिंग नीड्स, द नीड ऑफ कस्टमर, फोरकास्टिंग। ठीक है, all are right answer. Say eventually what we want our systems to be intelligent. We want systems to make decisions. जितना डाटा मेरे पास होगा, the more accurate will be my decision. That's all. We want our systems to be intelligent. अभी हम लोग फेसबुक पे, I don't know how many of you are on Facebook, अभी तो सब इंस्टाग्राम वाले हैं, बट फेसबुक पे जब when we used to upload a photo, तो वो रिकमेंड करता है कि ये फोटो में दिस पर्सन माइट बी योर फ्रेंड, योर ब्रदर और सिस्टर, एंड यू वांट टू टैग देम। तो थिंक अबाउट द नंबर ऑफ यूजर्स, फेसबुक के यूजर्स, एंड द नंबर ऑफ पिक्चर्स दे आर अपलोडिंग एवरी डे। उसके बाद भी समवेयर दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज एक ऐसा आदमी जो आपकी पिक्चर में है, डू यू वांट टू टैग हिम? एंड अर्लियर इट यूज्ड टू बी क्लोज टू 94%. They were 94% correct in identifying the person. Now it is 98.7%. 98.7% they provide the right tagging. And for that matter, even I don't know if you guys have noticed, आप Google पे कुछ सर्च करना शुरू करो, most of the time after typing few words, it will know what are you trying to search. Right? हम लोग बोलते हैं कि perhaps Google know more about us than our spouse or our family. How? उनको कैसे पता हमारे बारे में? It's all data. So that's where big data plays important role. So important क्यों है? Again, big data is applicable everywhere. Important क्यों है? Because it's making the system smart, intelligent. पूरा artificial intelligence जो है वो इसके ऊपर ही बैठा है। ये चला गया तो इंटेलिजेंस भी चली जाएगी। हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं? एज ए ह्यूमन बीइंग, हाउ डू आई टेक डिसीजन? बेस्ड ऑन द डाटा ना, किसने मुझे कुछ फैक्ट दिया, मैंने कहीं पढ़ा, कुछ मुझे याद है, एनालिटिक्स रन किया, अपना दिमाग चलाया, डिसीजन लिया। वो डाटा ही नहीं होगा तो मैं डिसीजन कैसे लूँगा? देन फोर्थ इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? स्टोरिंग समथिंग वर्चुअली। ओके, not using actual storage. We'll discuss that. लेकिन yeah, on the cloud. Very good. Yeah. एक मिनट, someone raised the hand. हाँ. Very good यार. He is a BTech CS student, हाँ. एग्जाम्पल गूगल फोटो, उसने एग्जाम्पल भी दे दिया, पहले पूछोगे मैं बता देता हूँ। So you are kind of right. So when we say talk about big data की बात कर रहे हैं, इतना सारा डाटा है, इसको कहीं स्टोर भी तो करोगे ना। आप बोलते हो वर्चुअल, कहीं क्लाउड पे सेव कर दिया। क्लाउड मतलब क्या? व्हाट इज क्लाउड? व्हाट इज वर्चुअल? व्हाट इज वर्चुअल एंड व्हाट इज क्लाउड? वर्चुअल क्लाउड का मतलब ये नहीं कि कहीं क्लाउड है, इट मीन्स कहीं एक्चुअल में फिजिकल डाटा सेंटर है, आपको नहीं पता। तो डाटा सेंटर है, मशीनें भी लगी हैं, फिजिकल मशीन है, स्टोरेज है, कंप्यूट है, सब कुछ है।
देर आर बिग डाटा सेंटर्स. गूगल का डाटा सेंटर देखोगे, आई डोंट नो आप लोगों ने कितना पढ़ा होगा. So there are big data centers, there are servers, there are storage, compute. आपको नहीं पता आपने को क्या किया, आपने तो अपने मोबाइल में डाटा सेव किया, लेकिन वो डाटा कहाँ सेव हुआ? उनकी मशीन पे, जिसको आप क्लाउड बोलते हो. So this has kind of revolutionized the entire IT industry. हम लोग पहले जब काम करते थे, किसी कस्टमर के साथ काम करेंगे, डाटा चाहिए, ओके, एक काम करो, 500 सर्वर डाल देते हैं. 500 सर्वर, इतना कंप्यूट, इतना रैक, इतना स्टैक. अगर डाटा सेंटर इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. डाटा सेंटर बनाना आसान नहीं है. इस कॉलेज को भी अगर अपना स्टोरेज कहीं चाहिए, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. आप सर्वर खरीदोगे, स्टोरेज खरीदोगे, एसी चाहिए, उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए, यूपीएस चाहिए, तो बिग इन्वेस्टमेंट. तो हमारा अच्छा खासा बिजनेस था वो. एज ए IT प्लेयर इट वॉज माई ब्रेड एंड बटर, क्योंकि हम लोग वो सेटअप करते थे. थिंग्स गॉट चेंज्ड. गूगल आ गया, है ना, Amazon आ गया, माइक्रोसॉफ्ट. अच्छा, मुझे 3 क्लाउड प्रोवाइडर के नाम बताओ. Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जियो क्लाउड, आई क्लाउड, सबको, गूगल क्लाउड, GCP. तो सब ने अपने अपने क्लाउड बना लिए और बोला अब आपको जरूरत नहीं है डाटा सेंटर की, सब कुछ मेरे पास सेव करो. तो सारा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई. क्लाउड की भी वैराइटीज है. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. वी से नाउ एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज ए सर्विस. इवन एजुकेशन कैन कम एज ए सर्विस. तो पहले सिर्फ स्टोरेज एज ए सर्विस, है ना, हमने सब सेव कर दिया क्लाउड पे, मुझे पता ही नहीं. अब आज की डेट में स्टोरेज की कोई बात नहीं करता. एवरीवन टॉक्स अबाउट द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. किसने एग्जांपल दिया? गूगल फोटोज. गूगल फोटोज क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर, मेरे मोबाइल पे है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो, मैं तो ऐप यूज कर रहा हूँ. सो आई एम यूजिंग एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर, जिसके नीचे एक एप्लीकेशन भी है, जिसका अपना एक वेब सर्वर भी होगा, क्लाइंट सर्वर भी होगा, डाटा सर्वर भी होगा, और फिर स्टोरेज भी होगी. एज ए यूजर मैंने कुछ नहीं खरीदा. मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ वो ऐप यूज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ जो है वो मुझे गूगल दे रहा है. दैट्स द पावर ऑफ क्लाउड. नाउ एनीथिंग कैन बी गिवन टू मी एज ए सर्विस. उसके बीनीथ क्या है आपको जरूरत नहीं है जानने की. एंड दैट्स व्हाट वी प्रोवाइड टू आवर कस्टमर. हम लोगों ने भी अपना मॉडल चेंज कर लिया. सो नाउ वी ऑल्सो प्रोवाइड एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज ए सर्विस मेरे कस्टमर को. बाकी का जितना कुछ है मैं मैनेज करूंगा. सो क्लाउड हैव चेंज्ड द IT इंडस्ट्री, एंड व्हेन IT इंडस्ट्री गेट चेंज्ड, लॉट ऑफ थिंग्स across the industry get changed. Okay, then cyber security. सब इंटरलिंक्ड है. डाटा है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा, कहीं दूर रख दिया क्लाउड के अंदर, तो अब क्या चाहिए फिर आपको? सिक्योरिटी भी चाहिए है ना. कहीं मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं रखी है, मुझे ही नहीं पता. फॉर साइबर सिक्योरिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब. तुम लोग, यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, अगर टेक्नोलॉजी में इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू मेक अ कैरियर इन टेक्नोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन. क्योंकि स्मार्ट तुम लोग हो तो कुछ और तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं. तो सो देयर आर ऑलवेज थ्रेट्स. हम लोग आज की डेट में हमारे कस्टमर को बोलते हैं, इफ़ यू बिलीव, आपको लगता है कि आपकी सर्वर पे कोई साइबर अटैक नहीं हो रहा या आपका डाटा सिक्योर है, it means you are unaware. Not even a single customer today say कि मेरा डाटा सिक्योर है, मुझे कोई खतरा नहीं है. Every other server, every single bit of data is exposed, and that's where the security has become such a big industry, a big technology to play with. And there are different ways of cyber security. I will not go into technology, but a very good industry and a very good technology which is getting evolved every other day. System integration. System integration, चलो मैं बता देता हूँ. This is all about globalization. तो अभी हमने एग्जांपल दिया था ना वो चक्की का, तो फ्लोर मिल. सो फ्लोर मिल अगर एक शहर के अंदर है तो वो क्या करेगी? बस वहीं पे जितना आटा होगा बना के बेच देंगे. सिस्टम इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट, जो लोकली हो सकता है वो वहाँ करो, हर जगह से बेस्ट ऑफ द थिंग यू गेट इट डन एंड देन इंटीग्रेट. एग्जाम्पल जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, या इवन
थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग. Aeroplane manufacturing, there are thousands of parts in aeroplane. Even for that matter, a normal car. Do you think everything get produced in that plant? कार को बनाने के लिए. So they have their own supply chain. जो जहाँ अच्छा बनता है वहाँ से बनवाते हैं. अगर if you take example of aeroplanes, aeroplane के जो seats हैं और उनके जो cover है, they are getting manufactured in India. मुझे लगता है कि इंडिया में कपड़ा की क्वालिटी अच्छी है एंड वी डू अ बेटर जॉब देयर. लेकिन जो माइक्रोचिप्स हैं वो कहाँ बनते हैं सारे? ताइवान में, ताइवान एंड फिलीपींस, क्योंकि वहाँ पे दे ऑलरेडी फ्लरिश द इंडस्ट्री. बाकी चीज़ें चाइना से बन के आ रही है, कुछ कहीं से बन के आ रहा है. बोइंग के हेडक्वार्टर में क्या होता है? इंटीग्रेशन, असेंबली. दैट्स अ सिस्टम इंटीग्रेशन. सो इंडस्ट्रीज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. हर चीज़ उससे, उसका बेनिफिट क्या हुआ? मेरी एक जगह पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई. कल को अगर ताइवान में कुछ हो गया, मेरा काम रुकेगा नहीं, मैं फिलीपीन से ले लूँगा. तो दैट्स हाउ आई एम एबल टू रन द बिजनेस. डिपेंडेंसी कम हो गई है. आईओटी, आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ, क्या मतलब है इसका? कोई बताओ थोड़ा. हाँ, क्या मतलब क्या है पर इसका? खुद में एडवांस होते हैं, मतलब खुद को समझते हैं मैं बहुत एडवांस हूँ. होते भी हैं, लगते हैं हमको लगता है मैं हूँ. मतलब एडवांस होते हैं या हाँ, कैसे होते हैं एडवांस? कैसे मतलब टाई वाई लगा के आते हैं? ऐसा तो नहीं. अच्छा, वो स्मार्ट डिवाइसेस हो गए. स्मार्ट डिवाइसेस, तो मैं स्मार्ट डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ. आजकल हर चीज़ स्मार्ट है. स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, राइट. बट ठीक है, सो दैट्स अ फीचर. बट इफ आईओटी क्या है पर वो? IoT is a technology which is actually being used to make that refrigerator smart. पर IoT है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. क्या मतलब होता है इसका? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट क्या होता है? हाँ, अभी अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? इंटरनेट ऑफ ह्यूमन बींग्स. मुझे कुछ पता है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ. तुम्हें कुछ पता है, तुम मुझे बता रहे हो. हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, तो हमने आपस में जोड़ लिया एक दूसरे को और हम आप बात कर रहे हैं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने क्या किया? कम्युनिकेशन ऑफ डिवाइसेस. हमने क्या डिवाइसेस को आपस में जोड़ दिया ताकि वो आपस में बात कर सके. ठीक है. एक प्लांट है जिसमें थर्मोस्टेट लगा है. अब थर्मोस्टेट मुझसे बात तो नहीं करेगा ना. थर्मोस्टेट का काम क्या है? थर्मोस्टेट किस काम आता है? थर्मोस्टेट किस काम आता है? MBA हो तो ये भी नहीं पता थर्मोस्टेट कहाँ काम आता है. एंड मेजर करने के लिए, इट मेजर्स द टेम्परेचर. तो थर्मोस्टेट क्या है? वो टेम्परेचर मेजर कर रहा है. जैसे होगा वो कट ऑफ कर देगा. टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा वो आपस में उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करेगा. तो पहले क्या था? ये सब चीज़ें मैनुअल होती थी या स्काडा सिस्टम्स होते थे. अगर प्लांट में किसमें देखो तो यूज्ड टू बी स्काडा सिस्टम्स जो प्लांट को ऑपरेट करने के लिए काम कर रहे हैं. हमने क्या किया? इनको जोड़ दिया अब इंटरनेट से. तो अभी जो प्लांट ऑपरेशंस हैं मैं अपने घर पे बैठ के भी देख सकता हूँ कि वहाँ थर्मोस्टेट में क्या टेम्परेचर है और वो स्विच ऑन हुआ या स्विच ऑफ नहीं हुआ. तो आई एक्चुअली मेड अ डिवाइस स्मार्ट. हमको करना क्या है? किसी भी डिवाइस के साथ हमें क्या चाहिए? अगर मुझे किसी डिवाइस को इंटरनेट पे कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए उस डिवाइस को? एक IP एड्रेस चाहिए. इस रूम के अंदर एयर कंडीशनर लगे हैं, मैनुअल है, अभी मैनुअली स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो. या थोड़ा सा स्मार्ट होंगे तो वो ऑटो टेम्परेचर मोड में रहेंगे, अपने आप स्विच ऑन स्विच ऑफ होंगे. लेकिन विद इन दिस रूम, राइट, आप उसको वर्चुअली ऑपरेट कर सकते हो, घर बैठ के ऑपरेट कर सकते हो. नहीं करना है तो वही वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये एयर कंडीशनर शुड बी एबल टू टॉक टू द वाईफाई. इंटरनेट से बात करेगा तभी तो मैं इससे काम करूंगा ना. दैट्स IoT. मैंने इस एयर कंडीशनर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया. एक बार कनेक्ट हो गया कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो. दैट्स IoT. और हर जगह यूज है इसका. स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल दे रहे हो, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर. एनी डैम थिंग कैन बी मेड स्मार्ट विद IoT. एनी डैम थिंग. इस चेयर को भी स्मार्ट बना सकते हो आप. स्मार्ट चेयर आप बैठोगे अपने आप वो ठंडी गर्म हो जाएगी. देयर आर कार्स विच कम विद अ स्मार्ट सीट. यूरोप में क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है
तो व्हेन यू स्विच ऑन द कार, वो कार का सीट का टेम्परेचर अपने आप वो मेक इट हॉट एंड कोजी फॉर यू. स्मार्ट सीट है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी मेड स्मार्ट थ्रू IoT. ओके, सिमुलेशन. सेकेंड लास्ट है सिमुलेशन. व्हाट इज सिमुलेशन? सिमुलेशन क्या होगा? किसी ने सुना है डिजिटल ट्विंस? वर्चुअल रेप्लिका. सही बोल रहा है लड़का. तो इट्स अ ट्विन. सिमुलेशन मीन्स डिजिटल ट्विन. मेरा जुड़वा है लेकिन क्या है? डिजिटल है, वर्चुअल है. तो अब जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं मेरे साथ मत करो, मेरे ट्विन के साथ कर लो. ठीक है? एक्सेप्ट डेटिंग. तो दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन लॉट ऑफ पायलट्स, POCs. एंड वेरी गुड एग्जांपल इज कोरोना, कोविड के टाइम पे हाउ मच टाइम इट टुक अस टू प्रोड्यूस द वैक्सीन? इट टुक लेस देन अ ईयर, राइट? टिपिकल प्रोडक्शन टाइम कितना होता है किसी भी वैक्सीन के लिए? इट्स 7 to 10 years. बट देन दे मेड यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज. जो भी एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग पे करने थे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स डिजिटल ह्यूमन पे किए, रिजल्ट्स निकाले, वेरीफाई किए, गॉट द अप्रूवल्स. इवन देयर इज फॉर डिजिटल ट्विन्स और दिस सिमुलेशन इज यूज्ड इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज वेरी हाई. आप एक एरोप्लेन पायलट है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, सिमुलेटर्स, राइट? वो दो प्रीवियस, आप प्लेन थोड़ी क्रैश कर सकते हो उसको सिखाने के लिए. But then simulator is where he can actually get a real time experience. There is a digital skin. अगर तो आप लोग पता डिजिटल स्किन, जो भी कॉस्मेटिक्स या वो करते हैं उनको अपनी चेक करना है वो क्रीम मैंने जो बनाई है उससे कुछ स्किन कैंसर तो नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी. अब पहले वो एनिमल्स पे करते थे क्योंकि ह्यूमन बींग पे कर नहीं सकते. एनिमल्स पे करते थे, वो पेटा आ गया वहाँ पे, वो एनिमल्स पे कैसे कर सकते हो? तो कहाँ करें एक्सपेरिमेंट? दे क्रिएटेड अ डिजिटल स्किन विच इज एज गुड एज ह्यूमन बींग स्किन. उस पर सारे टेस्ट करते हैं, टेस्ट सही है, रिजल्ट सही है, दे गेट अप्रूवल. सिमुलेशन. एंड द लास्ट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा है किसी ने? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D फोटोस्टेट, 3D प्रिंटिंग. क्या है 3D प्रिंटिंग? किसी ने बहुत जोर की यस बोला. अब यह मतलब है कि वो 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग है. ठीक है, ठीक है. नहीं, ये रियल है यार, ये वर्चुअल नहीं होता. चलो मैं बताता हूँ थोड़ा. तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे करते हो? आप मशीन्स होंगी, मोल्ड होंगे, कुछ ऐसा होगा. मुझे अगर ये कोई एक डिवाइस बनाना है तो आई नीड अ मोल्ड जिसके अंदर मटेरियल डालूंगा और फिर वो सब करेंगे पिट्स डाल के, और वो दैट्स अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग, राइट? लेकिन वो मोल्ड और वो सब बनाने के लिए इट्स अ इन्वेस्टमेंट. मुझे एक POC करना है, एक प्रोटोटाइप देखना है. तो हम लोग क्या करते थे? वी यूज्ड टू हैव अ 3D प्रिंटिंग. वो करता है क्या? इट क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर. तो मुझे अगर ये बनाना है, ये माइक बनाना है, कोई भी फॉर दैट मैटर ये स्पीकर बनाना है, तो मैं इसका पूरा डायमेंशंस जो पूरा इसका है प्लस जो भी इसमें मटेरियल है वो सब आई विल फीड इनटू अ सिस्टम. सिस्टम क्या करेगा? इट विल क्रिएट दिस स्पीकर लेयर बाय लेयर. तो आपका जो मोल्ड का खर्चा है या एक बिग टाइम इन्वेस्टमेंट है वो आपको नहीं चाहिए. आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है. वो सिस्टम के थ्रू इट विल रीड एंड देन इट विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर यू. तो जब शुरू हुआ था ये 3D प्रिंटिंग, इट वाज मोर लाइक अ प्रोटोटाइपिंग. मुझे कुछ बना के देखना है, मैन्युफैक्चरिंग में पूरा कर नहीं सकता, लेट मी यूज अ 3D प्रिंटिंग. बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी नाउ वी कैन यूज 3D प्रिंटिंग फॉर इवन फॉर द मास प्रोडक्शन. तो मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एक्चुअली गोइंग डाउन क्योंकि इसमें वेस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो वेस्ट है. क्योंकि आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करते हो, देयर लॉट ऑफ वेस्टेज. आप उसको हीट भी कर रहे हो, डाल रहे हो, फिर इसको ट्रिम करोगे, वो सब. इसके अंदर ऑलमोस्ट 99%, 98% इज एक्चुअली यूज्ड. वेस्टेज इज लेस देन 2%.
and if you can do it at a mass production level, so now there are talks about even doing a 3D home. आप घर पूरा का पूरा घर जो है you can build using a 3D. तो आपने एक पूरा मॉडल लिया, कैमरा डिवाइस जो को पूरा का पूरा आपके घर को ब्रिक बाय ब्रिक बना के देगा आपको. कुछ और के बोलो यार. Good. So news to me. So that something. So again, something which is getting very popular. So these are 9 technologies. Ma'am, what is the time? I think I took. तुम लोग कब तक जागोगे? कभी बोले कि अब सब थक गए? 15 minutes we will wrap up. 15 minutes. You can wake with me. ठीक है. So we'll skip this. Okay. अभी टेक्नोलॉजी तो इतनी सारी पढ़ ली, बट इज दैट द एंड? खत्म हो गई टेक्नोलॉजी? तो दीज आर द 9 टेक्नोलॉजीज, लेकिन बहुत सारी और इवॉल्व हो रही हैं. सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड गार्टनर. सुने? सो देयर इज गार्टनर हाइप साइकिल. तो गार्टनर क्या करता है? एवरी ईयर दे पब्लिश दिस हाइप साइकिल. हाइप का मतलब क्या है? बहुत चीज़ें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन उनमें से कितनी सर्वाइव करेंगी? कोई भी चीज़ जब नहीं आती है इन द मार्केट, देयर विल लॉट ऑफ हाइप, है ना? कोई भी बॉलीवुड में नया हीरो आता है, अब तो भैया शाहरुख खान आ गया, लेकिन वो पता है 3 साल बाद वो फ्लॉप हो गया. तो सो वट एवर यू सी जो वो ऊपर चढ़ रहा है, दे आर ऑल आज के शाहरुख खान. बनेंगे या नहीं बनेंगे पता नहीं, लेकिन सबको बड़ी हाइप है. सो वट एवर द टेक्नोलॉजीज, आप तुम लोग को रीड नहीं कर पाओगे तो थोड़ा एफर्ट डालना, गूगल पे सर्च मार के देखना. बट दीज ऑल आर द टेक्नोलॉजीज विच आर गोइंग टू इवॉल्व, विच आर इन देयर नेसेंट स्टेजेस, बट दीज आर द टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर. जो ऊपर पहुंच गए, इट मीन्स कि अभी हाइप जितना बना सकते थे बना लिया. आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाइप किसकी है? AI, जेन AI तो बस हमारी जॉब लेके जाएगा, है ना? तो वो जो टॉप पे पहुंच गया, दिस इज व्हेन यू हैव द मैक्सिमम हाइप. उसके बाद क्या होता है? आप फिर आप नीचे गिर जाते हो कि बॉस जितना सोचा था उतना नहीं करेगा, तो चने के झाड़ पे चढ़ा के देन यू फेल डाउन. तो वो जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो इस तरफ बहुत कम है, लेकिन देन दीज आर द थिंग वेयर यू गेट अ रियल वर्ल्ड कि बॉस इतना ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा. और उसके बाद देन इट बिकम अ प्लेच्यू. तो आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है. तो अभी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज है, अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो देन यू कैन यूज दिस हाइप साइकिल एंड देन डू लिटिल मोर सर्च किसमें क्या चल रहा है. I'm again repeating myself. When an expert is here, you have to ask them very direct questions. Okay, there are certain questions about the journey of an expert. An expert is already here with n number of X of experience, right? You are the beginner. You have to get your cloud clear. I asked this question deliberately because lot many of you came to me individually. I don't have a technical background. Can I go? Answer is yes, you can go. And the era today is you have to make yourself tech savvy. Even if you're choosing finance, you have to be tech savvy today. Even if you're going for any operations job, because everything is using on softwares, ERPs everywhere. You must know how to use the technology, and that basic thing is required. Thank you very much, sir.